I see a lot of parents and students as well. So Hari Om, Namaste, and good evening. Thank you for this joining us, and thank you for listening to us. I am Smriti. I work in the space of education technology and strategy, as Mr. Venkat was mentioning. I have worked in organizations like Tata McGraw-Hill. You would have heard about it. Many of your books would have been from there, and Xavier. So primarily, I have worked on digital education platforms and apps in the field of higher education. So for medical students and teachers, for engineering colleges and teachers and students. So I have worked in that space more. And I have rolled out a lot of internet and mobile based solutions. And Mr. Venkat just mentioned, I love traveling. And off lately, especially since the lockdown has started off, being a strategy professional, I have been taking a lot of classes, a lot of webinars like this, especially around what is the significance of education technology. So, and also, I want to request saying that you could be like bilingual, a little bit of like Hindi and English mixed together. Yes. Sure, that I'll go ahead and do that. So recently, off lately, जब से lockdown शुरू हुआ है, there has been many sessions, especially around this, like the one आज जैसे हमारा होने वाला है. So जैसे कि recently there was one which we conducted from मेरे office की तरफ से, and there were 30,000 medical students and teachers across the globe. So some points from there, but of course relevant to कि हमारे स्कूल के लिए क्या जरूरी रहेगा, हमारे गुरुकुल के लिए क्या जरूरी रहेगा. So we'll cover that today. At the end of the session हमारा एक Q&A session रहेगा. So please feel free to कोई भी doubts हो, teachers, parents, students, let's go ahead and discuss that. And this is the first one in the series. हमारा ऐसे और भी meetings आने वाले हैं. So we will go ahead and start off now. Okay, so Mr. Venkat mentioned that a lot of education technology solution, that's my field, right? And you see that on the screen. Education technology मतलब क्या है? So basically अब तक हम सबने बुक से काफी पढ़ाई किया है, right? हम में से हर कोई किताब से पढ़ता है. बट किताब के अलावा भी बहुत सारे और टूल्स है. आपकी सारी किताबों को ऑनलाइन डाला जा सकता है, आपकी बहुत सारी टेस्ट ऑनलाइन किया जा सकता है. सो ऑल दोस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जो टीचिंग लर्निंग के लिए आपको हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन. एज आई वाज मेंशनिंग यू अर्लियर, मैं जनरली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड की एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे काम किया हुआ है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. Keeping in mind आज का सेशन जो शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे सुनने में, I'll elaborate on two of them. So for example, when I was working with Tata McGraw-Hill के साथ जब मैं काम कर रही थी, so Learn Smart, हम सब ऑनलाइन टेस्ट आज तक तो कभी ना कभी दे चुके होंगे ना. बट इमेजिन स्पेशली बच्चे लोग या हम लोग जब एग्जाम्स देते थे, आपकी प्लेटफॉर्म आपको बोले, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्मृति, तुमने एग्जाम तो दे दिया, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तुम ये टेस्ट ले रहे हो, लेकिन ये 5 टॉपिक्स है विच आर योर वीक एरियाज. आप इसमें डेफिनेटली पक्का फेल होने वाले हो और पढ़ाई कर लो. हाउ डज इट साउंड्स? कैसे लगेगा? या फिर सिमिलरली फॉर द टीचर्स हियर इन द सेशन टुडे, द टूल विल टेल, मैम आपने 25 कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया है, लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ना क्लास में ज्यादातर बच्चों ने नहीं समझा है. So which means next class को टीचर आके वही समझा देगा. So it has an intelligent part to it as well. So that is Learn Smart. ये हमने क्यों बात किया? क्योंकि the whole world globally is running towards ऐसे सारे चीजें. पूरा वर्ल्ड भर में ऐसे solutions बहुत दिनों से यूज होता आ रहा है. तो हम लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन आगे जैसे जाते जाएंगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग चीजों पे हम काम करते रहेंगे. द सेकेंड थिंग जो मैंने काम किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बोलने से इट विल बी इंटरेस्टिंग पीस, इज द edX. Abhishek and all would definitely, Mr. Abhishek and all will know edX and all, and Mr. Venkat, you would also know, many of you would know. So बहुत सारी इसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. तो बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होता है. सिर्फ edX नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने भी स्वयं रिलीज किया हुआ है, IITs ने NPTEL रिलीज किया हुआ है हायर एजुकेशन स्पेस में, जहां पे हम जाके
फ्रीली बहुत सारा कोर्स ले सकते हैं। एंड अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब तो बहुत सारा कोर्सेज फ्री हो गए हैं। एंड इमेजिन हम हमारे घर से बैठ के कोर्स ले रहे हैं ऑन एनी टॉपिक। रोबोटिक इंजीनियरिंग पे लिया है, आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पे कुछ लेना चाहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप सोच सकते हो, वो सारे टाइप की कोर्सेज इसके अंदर होते हैं। एंड जब आप वहां पे बैठ रहे हो, एक आईआईटी की बच्चा भी वहां पे बैठा होगा, प्रोबेबली आपका एक हार्वर्ड से भी बच्चा वहां पे बैठा होगा, एक स्टैनफोर्ड का भी बच्चा बैठा होगा। तो आप सोचिए कि आपकी पूरी क्लासरूम आपके घर के अंदर आ चुका है आपकी डिवाइस पे। सो हम इसमें जस्ट बिफोर दिस सेशन आई एंड मिस्टर वेंकट वी वर डिस्कसिंग कि आगे जाके हम ऐसे कौन से कोर्सेज आप लोगों के लिए भी ला सकेंगे। तो दैट इज इन द प्लान, वी विल हैव इट जैसे नेक्स्ट सेशंस होंगे। लेकिन द आइडिया ऑफ दिस वाज कि बहुत सारी चीजें इस फील्ड में हो रहा है, एंड I'm so happy to know that in Gurukul we are implementing all of these. So any comments, Mr. Venkat? No, I think we are good. So definitely, जैसा आपने मेंशन किया कि अभी बच्चे सिर्फ अपने क्लास से ही compete नहीं कर रहे, participate नहीं कर रहे, but अपने शहर और across the globe, जैसे edX का जो solution है मॉक्स का, this is an online test और online reading thing that हार्वर्ड से भी स्टैनफोर्ड से भी बच्चे वहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने बच्चे भी उनके साथ compete कर रहे हैं। आज के समय में it looks like बहुत बड़ी चीज है करके, but ये भी एक नॉर्मल सा हो जाएगा। Very soon it's going to be like that. जी। Already normal होने लगा है। The whole globe comes to your, आपका पूरा सारे कंट्रीज आ रहे हैं आपके रूम में, एंड हम भी इसको रेगुलरली करना शुरू करेंगे in next few months. That's the plan. Yes. Yeah. ओके, सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। कोई भी आपकी पढ़ाई रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड वाली चीजें अगर डिजिटल हो जाता है, एंड वो सिर्फ बुक्स नहीं, आपके एग्जाम्स भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, दैट्स कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस हैज बीन देयर फॉर मेनी इयर्स नाउ, लाइक 10 years 20 years से चलता आ रहा है। ये कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विद द लॉकडाउन एवरीबडी हैज गियर्ड अप, मतलब अब ये एक नेसेसिटी हो गया, एंड हमारे इंडिया में स्पेशली हम लोग इसमें बहुत जल्दी और मूव करना शुरू कर दिए। बट अब क्यों? सो द आंसर टू दैट विल बी, मतलब वाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज की डेट पे ये सेमिनार की क्या जरूरत थी, आज की डेट पे ये वेबिनार की क्या जरूरत थी, राइट? क्या देख रहे हैं हम स्क्रीन पे? Sink or swim. Somebody's Yeah, we are saying like sink or swim. Yeah. So which means lockdown was a surprise for all of us, right? Lockdown हम में से किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कैसे लॉकडाउन आ जाएगा, पैंडेमिक हो जाएगी पूरी वर्ल्ड में, कोविड-19 आ जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। So now that we have been thrown into the water, पानी में हम जब गिरते हैं क्या करते हैं? या तो हम डूब जाएंगे, या तो we will learn how to swim. And as Gurukul students, we are winners. So we are going to go ahead, swim, and come out winners out of this, right? So इस वजह से आज की discussion on education technology. Any points, Mr. Venkat? Yeah, I think that's very well said. Because अभी जो परिस्थिति आई है तो उसको मतलब सारा बंद करके घर पे रहना एक ऑप्शन है, या फिर अभी जो टेक्नोलॉजी का चेंज के साथ स्कूल जो एफर्ट कर रहा है, बाकी और भी जो स्टेक होल्डर्स एफर्ट जो लगा रहे हैं, उनको साथ देते हुए हम भी उसको दे रहे हैं। सच, इट्स वेरी गुड पॉइंट। या, थैंक यू। ओके, सो आप लोगों ने आपके घर के पास दोस्तों से सुना होगा, बाकी लोगों से सुना होगा, जो दीदी लोग होंगे, भैया लोग होंगे, उनसे भी सुना होगा। हर किसी की कॉलेज आजकल ऑनलाइन हो गया है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हर किसी के क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है, पार्टीज भी ऑनलाइन चलते हैं, बर्थडे पार्टीज भी ऑनलाइन होता है। सो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो है अब आपके घर पे डिलीवर हो रहा है, एंड ना सिर्फ हम गुरुकुल से हमारे ये हो रहा है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया, हर जगह पे, हर स्कूल, हर कॉलेज is now delivering online learning teaching, because अभी की सिनेरियो में that's the best move that we can go ahead with, right? Okay. लेकिन ऐसा क्यों? हम इसको we could have just stopped with it, but continuity is the key. Education बंद नहीं हो सकता है, it's a cycle. हम ये साइकिल ब्रेक नहीं कर सकते और एक साल का ब्रेक नहीं ले सकते कि अभी तो मैं क्लास 7 में हूँ, एक साल वेट कर लेता हूँ, फिर अगले साल जाऊंगा। None of us thinks like that, right? We have to continue with this,
प्रैक्टिस छूटेगा, एक साल छूटेगा, पढ़ाई छूटेगी। हम ये नहीं चाहते। कभी कभी चाहते हैं थोड़ा थोड़ा टू हैव अ ब्रेक, टू हैव दिस समर वेकेशंस, आई एग्री, ऑल ऑफ अस नीड इट, बट नॉट इन द लार्ज स्केल। तो एजुकेशन कैन नॉट वेट। एंड पेरेंट्स यहाँ पे जितने हमारे हैं, आप लोग डेफिनेटली अग्री करेंगे कि कुछ भी सिनेरियो हो, हम बच्चों का एक साल तो अभी जाने तो नहीं दे सकते, उनकी क्लासेस को पीछे नहीं डाल सकते, क्योंकि क्लास की एनुअल एग्जाम्स तो फाइनली होने वाला है, और जब होगा वो टाइम प्री स्केड्यूल्ड है, तो तब तक पढ़ाई वगैरह करके बच्चों को तैयार तो करना ही है, एक साल वेस्ट तो नहीं होने। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, लेकिन इन जनरल कि ये एक्चुअली हो पाता है क्या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, डज इट रियली वर्क? एंड टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारा चैलेंजेस है, पता नहीं ये हमारे लिए एक वरदान रहेगा या ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा हो जाएगा ना। हर चीज का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, राइट? तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं हमारी एडवांटेज के लिए, वो बिल्कुल हमारे हाथ की बात है। सो बून और बेन हमारे लिए एक वरदान है या हमारे लिए एक चैलेंज होके आ रहा है, ये कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है, हम इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। एंड इस हैंडलिंग में सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट कि आज की वेबिनार में हमारे पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, एंड स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। टीचर, स्कूल, व्हेन आई टेल टीचर, सिर्फ आपकी टीचर नहीं, आपकी टीचर और आपका स्कूल और पेरेंट्स, आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे पहले था कि हमने रेडी कर दिया, बच्चे स्कूल चले गए, दैट वो सिनेरियो थोड़ा भी अलग हो गया है विथ ऑनलाइन टीचिंग। दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट इक्वल रोल आ जाता है, पार्टनरशिप लेके बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, मोटिवेट करना, इंस्पिरेशन करना, अकाउंटेबिलिटी लाना, ये दोनों का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी एक पार्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी होने से ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग नहीं चलेगा। तो पेरेंट्स का भी इक्वली एक इम्पॉर्टेंट रोल है जितना कि स्कूल का एंड टीचर्स का रहेगा। तीनों का ही एक ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तभी जाके ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑब्वियसली बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों के अलावा ये एक मेजर पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा घर पे रह रहा है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। ओके, सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि अभी रिसेंटली एक वेबिनार हुआ था जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आए थे। तो हम लोगों ने KMC मणिपाल, एक नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है इंडिया का, उनके साथ पार्टनरशिप करके ये हमने प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। सो वहां से कुछ पॉइंट्स पिक किया है, मुझे लगा जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है आज के डिस्कशन के लिए। सो ये ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हम बात करें कि ये क्या हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा या बहुत बड़ा चैलेंज बन के आएगा, ये कंप्लीटली हमारे हाथ में। सो यहाँ पे कुछ टिप्स है, 4-5 टिप्स है कि ये हमारे लिए एक वरदान कैसे साबित हो सकता है। सो विल कवर ईच वन ऑफ देम एक एक करके। सेल्फ केयर, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअल लर्निंग स्ट्रेटेजी, कम्युनिटी लर्निंग। सेल्फ केयर, अपना केयर लेना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, घर पे हैं, बहुत सारा मूवीज वॉच कर रहे हैं, बहुत सारा गेम खेल रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, कैसे ये सब कुछ मैनेज करना है। टेक्नोलॉजी, क्या मेरे पास इनफ इंटरनेट है, इनफ डिवाइस है। मेरा लर्निंग स्टाइल अलग है, मुझे जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ना तब मुझे नोट्स लेके पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन ये तो आजकल ज्यादा हो नहीं रहा है। वो ऑनलाइन में तो मैडम इतनी सारी बच्चों के साथ बिजी हो जाते हैं कि मुझे तो बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है पॉइंट्स, राइट? और मुझे ना अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडीज करना बड़ा पसंद है, मेरे क्लासमेट्स के साथ, और आजकल तो वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आपके दिमाग में, राइट? तो हम 5 पॉइंट्स कवर करेंगे आज। और हाँ, वो एक चीज जो आपको डिफरेंशिएट करता है, आपके बच्चे को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम एनीबॉडी आउट देयर, इज कि आप एक गुरुकुल की विद्यार्थी हैं। तो जो वैदिक एंड स्पिरिचुअल मेथड्स बापूजी बताते हैं वो हमें डिफरेंशिएट करता है पूरी दुनिया से। और सिर्फ मतलब आपके लिए नहीं, आप लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जैसे हम लोग भी ऑफिस में, वो हमें बहुत स्टैंड आउट करवाता है वर्सेस बाकी लोग कैसे ले रहे हैं इस लॉकडाउन को। तो हम वो वाला पार्ट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज दैट्स आवर USP, दैट्स आवर
special point. Okay. Another thing, this meeting could end in about 10 minutes. तो everybody, जितने लोग भी है तो फिर से relog in कर लीजिए अगर ये meeting end हो जाता है तो 10 minutes से अभी we can still go on. ठीक है. I'll cover in 5-7 minutes. Yeah. Okay. Self care हम बात कर रहे थे. एक डेली रूटीन बना के रखना बहुत जरूरी है. जस्ट बिकॉज छुट्टियां चल रही है उतने क्लासेस नहीं हो रहे हैं, मैं सुबह देर से भी उठ सकता हूँ, मैं देर रात तक गेम्स भी खेल सकता हूँ, अवॉइड वो सारा कुछ. आप जितना करोगे आप खुद को पसंद नहीं आएगा, आप करते रहोगे, वो साइकिल बनता रहेगा. तो रूटीन बहुत जरूरी है. और स्पेशली आप गुरुकुल के बच्चे हैं, आपको सूर्य को अर्घ्य देना सिखाया जाता है, आपको गुंजन किया करना, प्रेयर करना सिखाया जाता है. वो सारा आप मेंटेन करते रहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. सेकंड, नींद बहुत जरूरी है आपको रिलैक्स करने के लिए, आपका मेंटल फ्री करने के लिए. सो अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा. 6, 7, 8, 9 घंटा जो आपका कॉमन स्लीप पैटर्न है सोते आपका नींद पूरा कीजिए. दिन में नहीं, जैसे आपका पूरा ये होता है उस तरीके से. ईट हेल्दी, बैलेंस्ड. आजकल तो जंक फूड, स्ट्रीट फूड होता ही नहीं है, तो मम्मियाँ अलाउ भी नहीं करती होंगी, ये पक्का है. लेकिन हाँ, अपना घर वाला खाना खाइए, वो आपको हेल्दी भी रहने का. अपना सूर्य नमस्कार कीजिए, आपका बाकी सारा जो आसन वगैरह होता है आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, हम लोग देखते हैं, तो वो करते रहिए. और हमने बात किया आप गुरुकुल के बच्चे हैं तो वैदिक प्रैक्टिसेस को मत भूलिएगा कि वो आपको डिफरेंशिएट करता है. स्पेशली पेरेंट्स के लिए, आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा, कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई बच्चा कुछ उलट पलट कर दिया. मेंटल हेल्थ जो है बच्चों का वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. दे आर नॉट रोबोट्स. इमोशंस होता है, बच्चे कभी डिप्रेस हो जाते हैं, अपने दोस्तों को नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को नहीं मिल रहे हैं, क्लासेस ठीक नहीं चल रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बातें करते रहिए. आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालिए हर रोज, लेकिन हमें पता चलना चाहिए दोनों तरीके से कि मम्मी पापा की लाइफ में क्या चल रहा है. बच्चे लोग आपको भी पता होनी चाहिए और मम्मी पापा को भी पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स है बताइए, अपनी टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, लेकिन बहुत जरूरी है. डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, डोंट बॉटल इट अप. नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स. ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है एंड आई एम श्योर मिस्टर वेंकट वांट्स टू मेक ए री-एम्फसाइज दैट. अपने घर में अच्छा सा कॉर्नर बनाइए, छोटा सा कॉर्नर हो, एक टेबल चेयर वाला. जैसे मैं जहाँ पे बैठी हूँ ये मेरा कॉर्नर है, पिछले 3-4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं घर से. तो ये मेरा हर रोज का ऑफिस स्पेस है, जहाँ पे मैं आती हूँ, हर रोज बैठती हूँ, हर रोज अपना ऑफिस का काम करती हूँ और शाम को ये सब कुछ बंद करके यहाँ पे मैं निकल जाती हूँ, जहाँ पे मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करता है. तो पेरेंट्स लोग प्लीज ऐसा कुछ एक छोटा सा कमरा ना हो तो एक कॉर्नर हो, ऑर्गेनाइज कर दीजिए बच्चे के लिए. जैसे बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करके भेजते हैं वैसे ऑर्गेनाइज कर दीजिए, जहाँ पे उसको इंटरप्शंस ना हो जब क्लासेस चल रहे. एंड बच्चे लोग आप भी स्टिक कीजिए. ऐसा नहीं कि आज टीवी के सामने, सोफा के सामने बैठ गए और कल हम जाके बालकनी में बैठ गए और परसों हम बेडरूम के कोने में बैठ गए. पैटर्न रखने से अच्छा होता है, जहाँ आप कंफर्टेबल हो. क्लासेस को भी लेके आते हैं आप अपना वाटर बॉटल, कभी कभी अपना छोटा सा स्नैक बॉक्स, तो वो साथ में रखिए. लिमिट योर डिजिटल टाइम. मुझे पता है जितने बच्चे लोग हैं सब बोलेंगे नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे तो सारा गेम्स होता है, वहीं पे तो सारा ऑनलाइन फेसबुक होता है. लेकिन स्पेशली पेरेंट्स एंड स्कूल, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि डिजिटल टाइम जो इनका है, ये डिवाइस का जो एक्सपोजर है वो एक लिमिटेड टाइम तक होनी चाहिए. जब क्लासेस चल रहे हैं थोड़ा सा उनको ब्रेक दीजिए, कुछ करना है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम में बंद हो जाना चाहिए. और बच्चे लोग सिर्फ आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम लोग भी ऐसे करते हैं. इसमें जो रेडिएशन होता है, एंड आई एम श्योर आप लोग जितना साइंस की हायर स्टडीज पढ़ रहे होंगे आप लोगों को पता होगा, इट्स नॉट रियली वेल फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू, गुड फॉर योर हेल्थ. एंड आपको पता है बापूजी भी कंप्लीटली इस चीज को पसंद नहीं करते, गुरुजी नहीं पसंद करते, राइट. सो लिमिट योर डिजिटल टाइम. उसको तब यूज कीजिए जैसे इतना यूज करना होता है. अपना गोल्स बनाइए. कैसे? एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्कूल डेफिनेटली ए वीक अहेड प्लान बना के देगा. स्कूल के लिए वो बहुत जरूरी है. आप अपना प्लान बनाइए. अच्छा, इस हफ्ते स्कूल हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है, तो मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ूंगी, 5 पेज पढ़ूंगी. अचीवेबल है? हाँ.
रेलेवेंट है, गोल सेटिंग में स्मार्ट होता है। किसी ने सुना है ये वाला वर्ड? इवन इफ यू हैवंट, इसको डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे वीक के एंड तक एक वीकली टेस्ट देना है। सो नेक्स्ट 5 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में तैयार हो जाऊंगी, ताकि सैटरडे की टेस्ट जो फोटोसिंथेसिस पे होगा मैं करूँ। अब ना गोल सेट करके चलिए। आज मन किया ये थोड़ा पढ़ लिया, कल मुझे ये चैप्टर अच्छा लग रहा है पढ़ लिया, ऐसा नहीं। जैसा आपका स्कूल प्लान बना के दे रहा है उस तरीके से प्लानिंग के साथ साथ चलिए। एंड पेरेंट्स लोग आप भी देखिए कि स्कूल के प्लान के साथ जा रहे हैं या बच्चे अपनी मनमर्जी से, क्योंकि बहुत जैसे खुद ही घर में पढ़ते हो तो इट्स वेरी नेचुरल कि हम डाइग्रेस कर जाते हैं, आज ये वाला कर लिया कल ये वाला कर लिया। मिक्स कीजिए, लेकिन थोड़ा स्कूल प्लान के हिसाब से स्मार्ट गोल्स बनाइए। अपना वीकली कैलेंडर जैसे हम बात कर रहे थे, ताकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा हो जाए। एक नॉर्मल कैलेंडर भले ही रखिए अपने पास, या फिर आपका एलएमएस टूल, अभी बात करेंगे हम स्कूल लॉग में जैसे होता है, मिस्टर अभिषेक विल शेयर। अपना कैलेंडर अपनी ऐप में या फिर अपना घर में ही एक कैलेंडर रखिए जहां पे हाईलाइट कर दीजिए थर्सडे तक ये सबमिशन है। जैसे आपका वीकली प्लान आपका स्कूल भेजता है, ताकि आपको भी पता चलता रहे, बच्चे को भी पता चल रहा है, हो जाए तो टिक लगा दीजिए, जैसे हम करते थे घर में। जैसे आपका कोई वेंडर आता है, वेजिटेबल वाला आता है, आपका मिल्क वाला आता है, हम उसको टिक करके रखते हैं, राइट? उस तरीके से या तो ऐप में या फिर एक नॉर्मल कैलेंडर। एंड जब स्कूल आपको ब्रेक देगा एक क्लास के दूसरे क्लास के अंदर, वो ऑनलाइन रह के गूगल एंड यूट्यूब सर्च मत करते रहिए, नेटफ्लिक्स मत देखते रहिए, वो 15 मिनट यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, स्क्रीन से बाहर जाइए, नहीं तो ऐसे ऐसे चश्मा लग जाएंगे। मुझे चश्मे नहीं लगे हैं, ये चश्मा सिर्फ स्क्रीन के लिए, बट हाँ, तो ब्रेक लेते रहिए। जो हमारा सारा व्यायाम है आंखों के लिए, वो सारा थोड़ा बहुत कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, 2-3 सूर्य नमस्कार खींच लीजिए, फिर शुरू कीजिए, ठीक है? टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस सेशन से पहले ऑलमोस्ट 5-6 लोगों से बात किया। हर किसी के घर में ये थोड़ा सा इश्यू आता है, कोई चला जाता है, किसी का डिवाइस काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट थोड़ा है। लेकिन अभी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ये हमें एक छोटा सा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। भले ही आपका रेगुलर डिवाइस हो, इंटरनेट का एक पैक मोबाइल वाला ले लिया, वो हम ज्यादा बात करेंगे, आई एम श्योर मिस्टर वेंकट विल शेयर। बट अभी एक डिवाइस एक अरेंज करना, वो टाइमली बच्चे को देना और उससे लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इंटरनेट हम बात कर रहे थे, वो भले ही फोन से हो, फोन डेटा से हो, वाईफाई से हो, केबल से हो, वो बहुत जरूरी है। एंड फुल लॉग एलएमएस के बारे में मिस्टर अभिषेक विल शेयर, सो उसकी यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह ध्यान से रखिएगा। एंड बहुत ही अच्छा बात है, अभी आई अंडरस्टूड इट फ्रॉम मिस्टर वेंकट कि स्कूल लॉग की तरफ से ही आपका बुक्स की लाइब्रेरी भी मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो प्रिंट बुक्स आपके पास गए हैं, आपकी टेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, टीचर्स भी अपनी मटेरियल वहां पे डालेंगे, तो आपको पूरा सब कुछ एक वन पॉइंट में मिल जाता है। और अपना एक लॉग बनाइए कि हर रोज आपने क्या पढ़ाई किया, भले ही आप सिर्फ एक ही टॉपिक आज पढ़े हैं और एक टेस्ट लिया है, वो लिख लो, ताकि ना आपको कुछ दिनों में पैटर्न पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। ये सुनने में लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं भी यहाँ पे कवर करती हूँ अपनी डायरी में। हर रोज लिख दीजिए कि आपने क्या किया हुआ है। एंड छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स आप लिख के रखिए, ताकि आपको पता चले कि ये कंसिस्टेंसी है और एक फ्लो में चीज चल रहा है, तो वो लिखना बहुत जरूरी है। ये एक एग्जांपल है, हम शेयर कर देंगे ये स्लाइड्स आपके साथ। मिस्टर वेंकट, हैव वी रिकॉर्डेड द सेशन? Yes, I'm recording it. Yes, I'm yeah, recording. so we will share this recording आपके साथ, ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ बनाइए, वीडियो देखा, रीडिंग असाइनमेंट किया, जो भी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम टिफिन ब्रेक्स में जाते हैं ना अपनी दोस्तों के साथ मिलने के लिए, और थोड़ा यहाँ वहाँ की नॉर्मल बातें भी करते हैं। हम टीचर से भी थोड़ा बहुत ये करते हैं। I'm sorry to interrupt. The session is going to end in 1 minute, so सभी लोग फिर से rejoin कर लीजिए, जैसा ये log out हो जाता है या cancel हो जाता है, session end हो जाता है, तो फिर से rejoin कर लीजिएगा। You can please continue. Yes. Yeah. So let's treat ये जो वर्चुअल क्लासेस हो गए हमारे, इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हमारा स्कूल का ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, या फिर प्रेयर वाला ब्रेक होता है, जब हम टीचर्स को मिल लेते हैं, अपनी फ्रेंड्स को मिल लेते हैं, उस तरीके से। तो ये कम्युनिटी एंड सोशल वाला साइड जो हमारा है, वो आजकल मिसिंग हो जाता है, तो वो कवर हो जाएगा। सो
सो इन द मीन वाइल बाकी पेरेंट्स लोग एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, इन जनरल कोई कमेंट्स हो, आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए. हाँ, आई कैन शेयर इट नाउ. Okay, आई कैन डू दैट. yeah. या All right, so we can go. या आई जस्ट हैव 3-4 स्लाइड्स, अभी इमीडिएटली खत्म कर लेंगे, लेकिन अपनी क्वेश्चन. ओके. Yeah, we can continue. You can continue. Yeah. Yes. Yeah. Okay. So online learning is here to stay. सिर्फ लॉकडाउन के वक्त नहीं, इवन आफ्टर द लॉकडाउन ये रहेगा. ये बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन में यूज होना शुरू हो जाएगा. ये नहीं कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, बच्चे कॉलेजेस नहीं जाएंगे, लेकिन ये डिजिटल डिवाइसेस के साथ कंबाइन करके के साथ ये रहने वाला है, क्योंकि लोगों को एडवांटेज देखने वाला है. So let's get comfortable with it, and good that the Gurukul is arranging that. तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो गया. So कुछ पॉइंट्स रीआइटरेट में करना चाहती हूँ, प्योरली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल, हमारा गुरुकुल के तरफ से, और ये स्पेशली फॉर द स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स, राइट. तो जो पॉइंट हम बात कर रहे थे, एजुकेशन मस्ट नॉट स्टॉप, कंटिन्यूटी इज द की. बहुत जरूरी है कि बच्चों का एक साल हम वेस्ट ना होने दें, ये टाइम वेस्ट ना होने दें. भले ही लॉकडाउन खुलते खुलते थोड़ा टाइम है, बच्चे स्कूल आते आते गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से थोड़ा टाइम है, बट ये टाइम को यूटिलाइज करके हमें हमारी रेगुलर क्लासेस एंड पढ़ाई मूव ऑन करनी चाहिए. मिस्टर वेंकट, एनी पॉइंट हियर? Yeah, I think we can continue. This one still. Yeah. Okay. So this one is a very important one. So I just have 5 points. हमने बहुत सारी points discuss की, लेकिन 5 points जो हमारी गुरुकुल के perspective से बहुत ज्यादा जरूरी है. 1, it has to be a collaboration between घर और स्कूल. पेरेंट्स का और टीचर्स का और स्कूल का, तीनों का ये एक पार्टनरशिप है. जैसे पहले पेरेंट्स बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते थे टाइमली, और फिर टीचर्स लोग क्लासेस वगैरह लेते थे और हम घर वापस जाते थे, तो तब थोड़ा बहुत वो कोलैबोरेशन था. अब वो कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा और स्ट्रांग हो जाता है, एंड स्पेशली बहुत सारी फ्रंट्स में. लेकिन सेल्फ केयर जो हम बात कर रहे थे कि आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई और चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं. तो अब इस सिनेरियो में, क्योंकि घर में रह रहे हैं बच्चे, तो जितना टीचर्स को ऑब्जर्व करना, स्कूल को ऑब्जर्व करना जरूरी है, उतना ही पेरेंट्स को देखने की जरूरत है, और आपस में कम्युनिकेशन जरूरी है. सो मिस्टर वेंकट, प्रोबेबली वी शुड अरेंज एवरी 2 weeks or so one call, probably from the school or from the teacher to the parents, and parents लोग भी ऐसा एक कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए जहाँ पे इंटरेक्शन हो सके कि क्या चल रहा है, क्या वो क्लास में पढ़ रहा है, क्या वो ठीक से फॉलो कर पा रहे हैं. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कोलैबोरेशन रहे. Any points, Mr. Venkat? Yeah, I want to add one thing here कि जो from a school log perspective, तो उन्होंने वैसे सिस्टम ऐसा बनाया कि on a daily basis वो communication gap को बहुत minimize कर दिया. Mr. Abhishek is going to talk about it as such. और दूसरी बात ये है कि स्कूल लॉग ने एक डिवाइस, जैसे बच्चे, कुछ पेरेंट्स का कंप्लेंट था कि हम ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से उनको एक फोन देते हैं, तो वो फोन मिसयूज करते हैं, या फिर टैबलेट देते हैं उसको मिसयूज करते हैं. तो स्कूल लॉग ने क्या किया कि दे हैव पार्टनर्ड विद सैमसंग, और उन्होंने एक टैबलेट का उनके साथ, मतलब जो पार्टनरशिप में उनको बल्क में ये मिल रहा है वैसे इसमें, दैट हैज रिड्यूस्ड बाय 1000 रुपीज, और भी डिस्काउंट करके जो बाहर जो मिल रहा है उससे. और इसमें क्या होगा, सिर्फ बच्चों का पढ़ाई होगी, बच्चे स्कूल लॉग ऐप ये जो पढ़ाई के लिए यूज कर पाएंगे, इसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे एज सच. तो ही इज गोइंग टू स्पीक मोर अबाउट इट. So that is a big problem that we had, because ये हार्डवेयर पे इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं जो बच्चों को लिमिट कर देगा. It will not allow them to go to YouTube में जाके कुछ भी चेक करे, या Facebook में जाए, ऐसे चीजों से रिस्ट्रिक्ट कर देगा. That is provide us the safety that we need. और स्कूल की ओर से ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि one of the thing is जो फाइनेंसेस वाली जो बात होती है इसी बेस पे, कि ऑलरेडी ये जो इश्यू मतलब हर जगह पे है, जो टीचर्स है
वो भी बच्चों के पेरेंट्स है या और भी उनको भी घर चलाना सब कुछ सेम प्रॉब्लम सर। पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं जॉब्स को लेकर सारे इश्यूज हर किसी को ग्रस्त है। तो स्कूल क्या कर रहा है कि उनका फर्स्ट टर्म फीस में आई गिव यू अ स्लाइड, आई टॉक अबाउट इट मोर, कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो फीस है उसमें 50% जो द फर्स्ट क्वार्टर फीस वुड बी गोइंग फॉर दिस डिवाइस के लिए। मतलब वो यूज करे, अगर घर पे ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो 50% डिस्काउंट दे रहा है स्कूल, ताकि पेरेंट्स को कुछ इससे कुछ राहत मिले और बच्चों की पढ़ाई को लेकर उसमें स्पेंड कर सके एज सच। So that is one thing. I'll talk about more about the finance part in a little bit. Yeah, you can proceed, Snigdha. Yeah. So I think Sure. glad that you mentioned about devices and network. Enabled teachers and technical support is क्या हमारी teachers are they enabled to handle such kind of things? Yes, इसमें and क्या हमारे पास जी I want to go about that. So इसमें क्या कि we really have screened and have actually selected the teachers who could adapt to this online teaching and professionally trained. आप लोगों को मतलब थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, जैसा आपने जो पहले बताया शाप या वरदान ऑनलाइन टीचिंग, तो जैसा अपन उसको एक वरदान के रूप में लेंगे तो बहुत ही ज्यादा, कभी हम सोच नहीं सकते थे कि यहाँ बैठे बच्चे आगरा में, जयपुर में, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड या IITians के बच्चों के साथ या जैसे उस लेवल के और अच्छे अच्छे स्कूलों के साथ compete कर सके, ऐसा एक प्लेटफॉर्म अपने को मिल रहा है। और फ्रॉम ए टीचिंग ऑल्सो, मतलब दिस इज अनदर boon that one of our teachers who is going to teach us online English के इसमें, so she is going to be teaching from California, so which was not something, this is really good, so we have tied up with someone, so they are actually teaching us. कुछ टीचर्स हमारा जो बाहर से आ रहे हैं विदेश से, they going to teach us such, तो वो भी अपने लिए पॉसिबल हुआ because we made it an opportunity, तो वो भी एक अच्छी चीज है। So we are definitely focusing on quality of the teachers and teachers who could adapt to the technology, और स्कूल लॉग ने भी बहुत ही अच्छे से काम किया उसमें, they made it very easy कि टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए अलग से टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके ऐप से ही लाइव मीटिंग सब कुछ, ये जूम भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उन्होंने काम किया, वो बताएंगे अभी जी। Yeah, and Mr. Venkat, another point, along with teachers, initially few weeks, it's important to have a technical go-to person as well. Yes, so whom the parents can call. Yes, definitely. There is a helpline number that will be given to the schools in Jaipur and Agra, so that कहीं पे भी technical issue आ रहा हो, कुछ भी issue आ रहा तो they can call at that number, so that the teachers are not getting disturbed from their doing their job of teaching. Technical issues सारे ये लोग handle करेंगे, तो that is we are allocating for that. Great. Attention to the student, both from school point of view as well as parents point of view. So as we were discussing, take out that 10 minutes, 15 minutes, खाना खाते वक्त, जो भी आपका टाइम है, प्रेयर के बाद या whatever, जो आपकी रेगुलर टाइम है, जस्ट एक दूसरे से बात कीजिए कि क्या चल रहा है, वो कम्युनिकेशन रहते रहना बहुत जरूरी है। Nobody should go into any kind of depression or isolation, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लोनली हो जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए जो हमेशा खेल कूद में और हर किसी के साथ कनेक्टेड होने में बच्चे हैं। Last, limit the digital exposure. I think Mr. Venkat, you mentioned those points, but it will be good to reiterate that because हर parents का ये concern रहता है and बहुत valid that I don't want to give them the devices across the day कि पता चले वो कुछ भी खेल रहे हैं, कभी भी YouTube में जा रहे हैं, Netflix में मूवी देखने जा रहे हैं, तो वो वाला aspect. It is a big risk, that is something, so that is why I'm glad that school log is doing this. तो ये बहुत मतलब important अच्छी चीज है। Yeah, so वो security वाला part is very very important, and also I understand there will be a timing, so depending on the timing, for example 1 बजे तक classes हो रहा है, आप you are free to take away, rather you should take away the devices 1 बजे के बाद। हम नहीं चाहते कि बच्चों के पास दिन भर रहे। बिल्कुल, वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए अपना स्कूल के जो क्लासेस भी है, तो एवरी डे देयर विल बी 4 क्लासेस टू द स्टूडेंट्स, उनके 4 पीरियड्स रहेंगे। वो सुबह आपके 8 बजे से जैसे 12 बजे तक आपका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, वो शेड्यूल अभी आपको दिखाएंगे इसमें, तो उतना समय ही बच्चों के पास ये डिवाइस होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी होमवर्क्स होते हैं वो ज्यादातर ऑन पेपर, जो पेपर नोटबुक पे करेंगे और ये पेरेंट्स के हेल्प से उसको अपलोड करेंगे स्टूडेंट ऐप के थ्रू, दैट इज इन द इवनिंग। इसीलिए बच्चों को उतना ही समय बच्चों के पास वो डिवाइस होनी चाहिए, और खास करके ऐसा भी डिवाइस लंबा भी हो तो वो बच्चे कुछ और कर भी नहीं पाएंगे, वैसे वो खुद ही छोड़ देंगे डिवाइस, बिकॉज उसमें से सिर्फ पढ़ाई के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते बच्चे। तो I'll just give one example. Sorry.
जी, फॉर ऑल्सो फॉर पेरेंट्स हु आर नॉट हैविंग डिवाइस बट वर गिविंग द फोन, उनके लिए खास करके दे शुड मेक श्योर दैट वो साथ रहे, और उस समय जैसे 12 बज जाता है उनका, मतलब जैसे 12 o'clock स्कूल कंप्लीट हो जाता है, तो दे शुड टेक अवे दैट, उनके साथ में से फोन ले लिया जाए, उनके पास छोड़े नहीं. श्योर. I'm very happy that Gurukul is organizing just the first half of the day till noon. Yes. Because I'll just share a story. I was recently interacting with AIMS था वो, yeah, in Delhi नहीं था, AIMS मंगलगिरी था. So what I learned there is कि कॉलेज क्या करता था, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बच्चों का क्लासेस करता था. So within these 2-3 months बच्चों को हेडेक शुरू हो गई, उनको स्क्रीन टाइम में आंख जलन शुरू हो गया. So everybody has come to this just 3-4 hours of classes, and I'm glad that you are planning it short, ताकि बहुत ज्यादा devices की exposure ना हो. So that's about it. I would again reiterate, let's not forget, गुरुकुल हमारी specialty है. स्पिरिचुअलिटी, वैदिक मेथड्स जो हमारी टीचर सिखाते हैं, जो बापूजी ने, गुरुजी ने सिखाया है, सो वो वाली एस्पेक्ट्स को मत छोड़िए, क्योंकि दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम एवरीबडी एल्स. एंड फॉर द पेरेंट्स, व्हाट डू वी सी हियर ऑन द स्क्रीन? ऑरेंज है लेकिन उसका स्किन ब्लू दिख रहा है. तो एवरी किड इज यूनिक. ये पता होगा घर में, जैसे 2-3 बच्चे होते हैं तब भी पता होता है. हर किसी का अपना लर्निंग स्टाइल होता है. वो जो जिन लोगों को एजुकेशन वाला पार्ट पता होगा, कोई पढ़ के याद रखता है, कोई लिख के याद रखता है, कोई सुन के याद रखता है, कोई डिस्कस करके याद रखता है. डिफरेंट तरीके से बच्चे सीखते हैं. सो वो स्पेस भी देना जरूरी है. जस्ट बिकॉज ऑनलाइन है हम उनको पुश करते रहे कि अरे तुम क्लास में क्यों नहीं हो, अरे तुमने, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस दीजिए बच्चों को. एंड वैदिक मेथड्स, आई जस्ट रिआइटरेट अगेन, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट राइट क्राउड में, तो वो हमें मेंटेन करना है. लास्ट बिफोर आई मूव ऑन हैंड इट ओवर टू मिस्टर अभिषेक, स्क्रीन में हम क्या देखें? There is a Mr. Venkat. Yes, I would say, because everybody बाकी सब लोग muted है, तो ऑरेंज जूस इन ए ग्लास, और दूसरा है कि ऑरेंज जूस जो बिखरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है. Okay, yeah, yes. So our next speaker is Mr. Abhishek from School Log. ये एग्जाम्पल क्यों था? क्योंकि हमने बहुत बात किया ना, स्कूल लॉग, LMS. ये ये क्या है? जूस है ग्लास के अंदर, राइट? ये हमारी बुक्स हो गई, कंटेंट हो गया, टीचर्स जो एग्जाम्स देते हैं वो हो गया, वो सब ग्लास के अंदर है. ग्लास टूटी तो क्या हुआ? पूरा जूस बिखर जाएगा. यहाँ पे कुछ, वहां पे कुछ, वहां पे कुछ. सो आपका जो LMS होता है, आपका स्कूल लॉग जो होता है, दैट्स एग्जैक्टली लाइक योर ग्लास which holds everything together. It's very important, and I am so happy that all these international level solutions is something Gurukul लेके आ रहा है बच्चों के लिए. बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है. क्योंकि ग्लास इज द, क्योंकि मैंने इतनी सारी स्कूल्स को जानती हूँ, व्हाट्सएप में चीजें भेज दिया, ये बच्चा कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, कोई टीचर अपनी मर्जी से कर रहा है. तो ब्रिंग इट टुगेदर एंड स्टिच इट इनटू वन ग्लास is your LMS. So the glass is basically your learning management system. LMS जो है ना, स्कूल लॉ, जहाँ से अभी मिस्टर अभिषेक will talk about, is basically your glass. So over to you, Mr. Abhishek, and sorry for the delay. But yeah, please carry forward. Thank you so much. Thank you, Smriti. Thank you. Thank you, Sunita ma'am. It was a very interactive session. मेरे को भी काफी चीजें नई सीखने को मिली हैं कि एज इन ग्लास होता है, कंटेंट जूस होता है, एंड जो ग्लास है वो LMS होता है. ये पिक्चराइजेशन मुझे पहली बार देखने को मिला है. इट वाज क्वाइट नाइस. मैं भी आगे यूज करूंगा ये. Yes, please feel free to. Yeah, thanks. So going forward, जो टॉपिक स्निग्धा मैम. So shall I stop sharing? You could actually stop sharing. Yes. Yes. Okay. Yes, you can. Yeah. So thank you, Venkat sir, for again calling me, and ये जो इनिशिएटिव आपने किया है. तो इसमें जैसे स्निग्धा मैम वाज टेलिंग कि टेक्नोलॉजी इज अ बून और अ बेन, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा कि लॉकडाउन एकदम से हो गया, वी डिडंट हैड एनी ऑप्शन, है ना, तो हमें ऑनलाइन आना ही पड़ा. तो अब हम आ गए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. कब स्कूल खुलें, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट कैसे ला पाए, इस पे गुरुकुल का भी, स्टूडेंट्स का भी, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, सबका फोकस होना चाहिए. ठीक है, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं. ऑनलाइन पढ़ने के बेनिफिट्स ये हैं कि जो टीचर हैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज पाएंगे. तो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप बार बार समझिए,
बार बार उस वीडियो को पॉज करें, आप बार बार देखें उस वीडियो को, ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा जो एक क्लास में नहीं मिलता था। एक क्लास 40 मिनट्स का होता था, उसमें एक बार टीचर ने पढ़ा दिया। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी था बचपन में, मैं बहुत हिचकिचाता था, मैं डाउट ही नहीं पूछ पाता था कि मेरे साथ वाले बच्चे क्या सोचेंगे, 30 बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे, मैं क्या डाउट पूछ रहा हूँ। तो इसमें क्या एडिट बेनिफिट है कि आप कभी भी कितनी भी बार वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है कि आप डाउट खूब सारे पूछ सकते हैं, जितने भी आप डाउट पूछना चाहें उतने डाउट पूछ सकते हैं, टीचर हर डाउट का आपका जवाब देंगे, ठीक है। बाद में भी डाउट को देख सकते हैं अगर आपको दोबारा आया तो वो, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से, वो होता है कंसेप्ट लेवल एनालिसिस। कंसेप्ट लेवल एनालिसिस क्या है कि जो बच्चा है वो किस पर्टिकुलर चैप्टर में कमजोर है। जैसे मैं अलजेब्रा में कमजोर होता था 10th क्लास में, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जब मेरे को प्रिपरेशन करना रहता था तो मैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो छोड़ देता था एंड अपने मॉम को कहता था कि मॉम मेरा सारा रिवीजन हो गया है, जबकि मॉम को तो पता ही नहीं रहता था कि अलजेब्रा इसने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को टफ लगता था तो मैं पढ़ता ही नहीं था, है ना। लेकिन अपने वाले में क्या बेनिफिट है, आप लर्निंग में ये सॉफ्ट ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे उसके क्या बेनिफिट है कि सॉफ्टवेयर को पता लग जाएगा कि बच्चा अलजेब्रा में कमजोर है या आपका कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में कमजोर है, यूनिट डायमेंशन में कमजोर है, किस चैप्टर में कमजोर है। तो हम उसकी लर्निंग उस हिसाब से करवा पाएंगे। जैसे मैं हमने बताया कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का लर्निंग कर्व अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को ये चीज देते हैं कि बच्चा जिसमें कमजोर है उसको वैसा ही कंटेंट दिया जाए, वैसे ही क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी का ये फायदा हो गया, ठीक है। I just want to इसके say बाद one आप, thing, Abhishek. हाँ There's, as you said, कि this is more of your adaptive learning. मतलब बच्चों को, हाँ जैसे she was saying that कि that is the term, तो मतलब बच्चों को adaptive learning कि जहाँ पे वो कमजोर है वो अपने को पकड़ में आ जाएगा इसके थ्रू। जी जी वो जी बात जी आप जी रख रहे हैं ना जी। जी 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 वही है। बच्चा कहाँ पे कमजोर है वो बच्चे को पता लग जाएगा, पेरेंट्स को भी पता लग जाएगा। मोर ओवर बच्चे को एनालिसिस, पेरेंट्स को बच्चे को एनालिसिस करना है कि बच्चा क्लास में कितना, कौन सी स्टैंडिंग पे है, जी उसका जी कौन सा कंसेप्ट वीक है, किस क्वेश्चन पे वो कितना टाइम लगा रहा है। Yeah. जैसे जनरली क्या होता है कि अगर हम स्कूल में पेन पेपर टेस्ट लेते हैं जी तो हमें पता नहीं लग पाता ना कि बच्चा ने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया। जी लेकिन जब हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चे ने इस क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट लगाया, इसके ऊपर 3 मिनट लगाया। तो वेंकट सर, गुरुकुल के टीचर सब गाइड कर सकते हैं बच्चे को कि आप इस क्वेश्चन पे इतना क्यों टाइम लगा रहे हो, बच्चा आपको कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत है आपको, हम आपको दोबारा पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन ऑल्दो रिप्लेस तो नहीं कर सकता कभी भी हमारे क्लासरूम मोड को, उतना एफिशिएंट भी नहीं बन सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे स्निग्धा मैम कह रहे थे कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं हमेशा के लिए अपनी क्लासरूम लर्निंग में जुड़ जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स जो हैं अडेप्टिव लर्निंग के, बच्चा कितना टाइम लगा रहा है किस क्वेश्चन पे, कंसेप्ट लेवल एनालिसिस, कॉन्फिडेंस कैसा है उसका। जब हमारे पास लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए हैं तो बच्चा कभी भी शायद गुरुकुल आगे जाके कोई लैब सेटअप कर दे, उसमें बच्चा जाके वो वीडियोस देख पाएगा, हमेशा के लिए वो कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो फायदे हो गए स्टूडेंट के लिए। पेरेंट्स के लिए क्या फायदे हैं कि पेरेंट्स के लिए फायदा है कि पेरेंट अब बहुत ज्यादा भागीदार बन गए एजुकेशन में। पहले के टाइम पे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे केस में क्या होता था कि बस मेरे फादर रिजल्ट लेने जाते थे, है ना। लेकिन अब ये ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है तो जितने फादर्स हैं, मदर्स हैं, वो सब लोग भी देख पा रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, रियल टाइम पे उनको भी एप्लीकेशन मिल रहा है, उसको वो सब ट्रैक कर पा रहे हैं। तो बच्चे का एनी डे विकास ज्यादा हो पा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स, टीचर्स तो अपनी मेहनत करते ही हैं, अपना 100% देते ही हैं, लेकिन इस केस में जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से भी भागीदारी रखी जा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू फायदेमंद हो गई हैं। ऑल्दो क्लासरूम लर्निंग बेस्ट थी, क्लासरूम का मजा कभी भी नहीं आ सकता ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा मोड है। तो मैं आपको एक, इसके बाद ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, ऑनलाइन वाला प्रोडक्ट, उसमें क्या क्या फीचर हैं, कैसे कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सर स्क्रीन शेयरिंग आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, Yes, sure. ग्रांट मी। I think you should. जी आप ट्राई करिए, should be. तो Yes, I can see मैं it जी now. जी तो मैं ये वेब पैनल दिखा देता हूँ। जी हाँ, वेब पैनल दिखा देता हूँ जिससे सारे बच्चों को सबको क्लियर हो जाएगा। तो इसका इसमें क्या ऐप क्या फीचर्स मिलते हैं बच्चों एंड ये कैसे सारे आपको, फीचर्स स्टूडेंट हाँ ऐप में इसका रहेंगे एप्लीकेशन, जी। हाँ इसका एप्लीकेशन भी रहेगा। जिस जिस बच्चे के घर कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे चलाए, जिस बच्चे के घर मोबाइल ऐप है वो मोबाइल ऐप पे चलाए, ठीक है ठीक है।
टैबलेट है टैबलेट पे चलाए, जैसे भी चलाना चाहे। जी तो इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, लेक्चर्स मिलता है, असाइनमेंट, डाउट, डिजिटल लाइब्रेरी, माई एग्जाम, स्कोर बोर्ड, माई बुक मार्क एंड नोटिफिकेशन। एक एक करके हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। लेक्चर्स में बच्चे को आज का लेक्चर देखना है, कल का लेक्चर उसको दोबारा रिवाइज करना है तो पीछे जाके रिवाइज कर सकता है। तो सारे लेक्चर्स डे बाय डे आ गए। बट लाइव क्लास जो होगी उसका भी लिंक यहीं पे आ जाएगा। तो इस पर बच्चा क्लिक करेगा एंड एक सेकेंड, एंड या तो यहाँ से लेक्चर को प्ले कर लेगा, जैसे ये प्ले हो गया है, ठीक है, या यहाँ से ज्वाइन कर लेगा, मीटिंग में ज्वाइन कर सकता है बच्चा यहाँ से, ठीक है। एक फायदा जो है, जस्ट वन पॉइंट हियर, yes, तो यहाँ पे हमेशा प्रेफर्ड रहेगा कि एज पर द क्लास शेड्यूल बच्चा लाइव ही ज्वाइन करे। बाई एनी चांस आपका कुछ नेटवर्क इशू आता है, बाई एनी चांस ये होता है, आप पहले से टीचर्स को इन्फॉर्म करके रखिए, स्कूल को इन्फॉर्म करके रखिए, एंड यहाँ पे रिकॉर्डेड वाला चल जाएगा। राइट मिस्टर अभिषेक, दैट्स द पॉइंट, या बट इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप लाइव वाला ज्वाइन करें, बिकॉज वहां पे टीचर्स रहेंगे, इंटरेक्शन रहेगा, टेस्ट रहेगा। हाँ। इसके बाद जो दूसरा बात है इसमें ये है कि जब हम लेक्चर रिकॉर्डेड भेज रहे हैं तो स्कूल को, पेरेंट को एंड टीचर को सबको पता रहेगा बच्चे ने कितनी देर वीडियो देखा, पूरा देखा या नहीं देखा। जनरली शिकायत आता था कि हम वीडियो तो भेज रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है बच्चा वीडियो देख भी रहा है या नहीं देख रहा है। तो हमारे वाले सिस्टम के थ्रू आपको स्कूल को भी, पेरेंट को भी, सबको पता रहेगा बच्चे ने आज कितनी देर पढ़ाई करी, कितने टेस्ट दिए, कितनी देर पढ़ाई करी, कितने डाउट पूछे, सब कुछ पता रहेगा। ये एडेड बेनिफिट है। तो आप पेरेंट ढंग से भागीदारी कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग में। इसके बाद बच्चे को असाइनमेंट दिया जाएगा, जो स्कूल का होमवर्क होता है, उसको डे वाइज होमवर्क मिलेगा एंड यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा सबमिट बाय टुमारो। बच्चा होमवर्क करेगा, पेज के ऊपर उसका फोटो खींचेगा एंड यहाँ पे जाके सबमिट कर देगा। सबमिट में रिमार्क्स लिखेगा, कुछ अटैचमेंट ऐड करेगा, जैसे कि आपका ऑडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट जो भी वो अटैच करना चाहे, एंड सबमिट कर देगा। तो टीचर के पास ये पहुंच जाएगा चीज उसी टाइम, ठीक है। अगेन सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट वन पॉइंट, जैसे मिस्टर वेंकट वाज मेंशनिंग, 12-1 बजे के बाद क्लास खत्म होने के बाद इट्स प्रेफरेबल कि आप डिवाइस ना दे बच्चों को, बच्चे थोड़ा अपनी कॉपी पेन में ही काम करें। एंड जैसे मिस्टर अभिषेक वाज मेंशनिंग, यहाँ पे जो इमेज वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप शाम को खुद पिक खींच के इसमें अपलोड करवा दीजिए, रादर देन कि बच्चों को बहुत ज्यादा डिवाइस की एक्सपोजर रहे। अगर आपको वो वाला कंसर्न है, हम भी यही रेकमेंड करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को भी उसमें नॉलेज रहेगा कि बच्चे ने होमवर्क किया, क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, तो वो अच्छा चीज है। बिल्कुल। एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। पेरेंट खुद सबमिट करेंगे तो उससे बेस्ट तो कोई बात ही नहीं हो सकता है। फिर इसमें सेक्शन आता है डाउट का। पढ़ाई करते दौरान अगर बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो बच्चा यहाँ पे ऐड न्यू डाउट पे जाएगा, ही विल राइट द टाइटल, डिस्क्रिप्शन में क्या डाउट आया है, किस सब्जेक्ट का है, जैसे कि मैथ्स का है। अटैचमेंट में वो अगर इमेज अटैच करना चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट उसके पास है वो अटैच करना चाहिए, या कोई एक ऐसा डाउट है जो वो ऑडियो फाइल में पूछना चाहता है तो क्या करेगा, ऑडियो रिकॉर्ड करेगा एंड सेंड कर देगा। तो टीचर ऑडियो सुन लेंगे एंड वापस रिप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जितना डाउट्स है सारा क्लियर करा जा सकता है। फिर जो बच्चे ने डाउट पूछा था पहले, वो सारे एक जगह पे दिख रहा है, क्या क्या डाउट पूछा गया था, ठीक है। देन आता है डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होता था, सिमिलरली यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिल जाती है बच्चों को, जिसमें क्या होगा कि अलग अलग कंटेंट जो है आपका, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गया या ई बुक हो गया, पीडीएफ हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, सब एक जगह मिल जाएगा आपको। तो बच्चा जब चाहे यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी में आए, जैसे स्कूल का लाइब्रेरी होता है, स्कूल के लाइब्रेरी में क्या होता है, हजारों बुक्स पढ़ा रहता है, बच्चा कोई भी जाए वहाँ पे पिक करे और पढ़ना स्टार्ट कर दे। सिमिलरली यहाँ पे हजारों बुक्स रहेगा, कंटेंट रहेगा, कोई वीडियो रहेगा, यूट्यूब का वीडियो रहेगा, जो भी अच्छा कंटेंट है, तो बच्चा यहाँ पे आएगा एंड देख सकता है। तो ये सब फीचर हो गए लेक्चर, असाइनमेंट, डाउट एंड डिजिटल लाइब्रेरी। फिर एक एग्जामिनेशन का सिस्टम आता है। इसमें एक एनालिसिस दिखाता हूँ आपको कि जैसे बच्चा है, उसका टेस्ट हुआ था, उसका 45 मार्क्स आया, तो ऐसे करके एनालिसिस मिलता है कि बच्चा का कितना नंबर आया, टॉपर का कितना आया, 90th परसेंटाइल बच्चे का कितना आया, ओवरऑल एंड सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन, कितना क्वेश्चन सही किया बच्चा, कितना गलत किया, अगर सब सही किया होता तो कितना नंबर आ सकता था बच्चे का, ठीक है। फिर हम इसमें टाइम एंड बिहेवियर का एनालिसिस देते हैं बच्चे को कि बच्चे ने कितना टाइम ऐसे क्वेश्चंस पे लगाया जो सही किया, कितना टाइम ऐसे लगाया जो गलत किया। तो इस तरीके से काफी तरीके से हम लोग एनालिसिस बच्चे को दे देते हैं। तो ये आगे चल के बच्चे की काफी मदद करेगा। फिर आ जाता है स्कोर बोर्ड।
स्कोर बोर्ड में मोटिवेट करने के लिए हम बच्चे को ग्राफिकली एनालिसिस दिखाते हैं। हाँ सॉरी टू जी। इंटरप्ट यू मिस्टर अभिषेक, कैन यू प्लीज गो बैक इससे पहले स्कोर बोर्ड से जस्ट पहले वाला। हाँ हाँ या मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए मैंने शॉर्ट या आई नो। सो वो जो पॉइंट मिस्टर अभिषेक दिखा रहे थे कि सही क्वेश्चंस पे कितना टाइम बच्चे ने स्पेंड किया, रॉन्ग क्वेश्चंस में कितना टाइम स्पेंड जी किया। जी एक तो ऑब्वियसली आप भी देख सकते हैं, अब देखने में वो सारा लगता है एक बार ग्राफ की तरह, लेकिन अपने जो टीचर्स हैं उनको भी प्रॉपरली स्कूल प्रॉपरली ट्रेन कर रहा है कि इससे बिल्कुल, क्या बिल्कुल, एनालिसिस निकालना है और अकॉर्डिंगली क्लास कैसे हमारा आगे डिजाइन होगा। बिल्कुल। तो जी, 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 जी। हम सिर्फ इसको बार ग्राफ्स की तरह नहीं ले रहे हैं, आप भी देखिए, बट स्कूल भी हमारा वो वाला केयर लेगा, गुरुकुल भी वो केयर लेगा कि कैसे आगे की क्लासेस डिजाइन होंगे, कैसे आपके जी, बच्चे जी, के जी। लिए स्पेशल इंडिविजुअल अटेंशन रहेगा। जी 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 एग्जैक्टली। इसमें फिर एक एनालिसिस और मिलता है, वो बता देता हूँ आपको, स्टेमिना एनालिसिस। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं अगर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो करते हैं, कुछ बच्चे आखिरी में जाके बहुत हड़बड़ाहट कर देते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तो जैसे इस बच्चे ने स्टार्टिंग में कम स्कोर किया है, अंत में अच्छा स्कोर किया है, तो टीचर बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, देखो बच्चा आप स्टार्टिंग में पेपर बहुत धीरे करते हैं इसलिए आपको इतना कम नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेमिना एनालिसिस भी दे सकते हैं बच्चे को। फिर बच्चे ने सब्जेक्ट वाइज कितना स्टेमिना के बारे में कहते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस है वो आप पहले आंसर करो, इससे कि बापूजी का ऐसा होता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस जी लेवल बढ़ जाता है। सो वी कैन टॉक टू द स्टूडेंट्स। जी 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 गुड। जी 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 तो इस तरीके से हम लोग और भी तरीके के एनालिसिस मिलते हैं इसमें। मैं सारे बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, Yes, it's एक और okay, दिखा हम देता बाद हूँ। में कर I think लेंगे। this was a एक good overview. Yeah. हाँ, ये क्वेश्चन लेवल एनालिसिस है। जैसे ये क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, तो दिख रहा है कि बच्चे ने कितना टाइम लगाया इस पे, जैसे 9 मिनट एंड 3 सेकंड। तो इसमें दिख रहा है कि बच्चा पहले आया इस क्वेश्चन पे, लगभग 8 मिनट लगाया, दोबारा आया और 1 मिनट और लगाया दोबारा। तो इसमें हम बच्चे को बोल सकते हैं कि बच्चा आप बार बार इस क्वेश्चन पे आके क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, है ना। बाकी बच्चे देखो आप, बाकी बच्चे तो इसको 4 मिनट में कर दे रहे हैं। तो हम इतना डिटेल्ड एनालिसिस में बच्चे को आगे चल के एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है, एंड जरूरी नहीं है कि हर वक्त इस एनालिसिस का मतलब है कि बच्चे ने एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम लिया। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने एक्चुअली जाके कुछ रीडिंग किया उस बारे में एंड हैज कम बैक, सो उसने अपनी मेहनत भी लगा दी। तो वो सारा एनालिसिस टीचर्स विल लुक इनटू। तो रादर हमारा पूरा जो टीचर टीम है वो ये सारी एस्पेक्ट्स को हैंडल करेगा। बहुत मेहनत, बहुत बढ़िया रहेगा ये। इसके बाद आते हैं हम इसमें स्कोर बोर्ड आता है। तो इसमें हम ग्राफिकली बच्चे को, जो ऑनलाइन लर्निंग चल रहा है, आपको स्कूल में क्या होता था, हम स्कूल में आते थे, डेली लेक्चर होता था, होमवर्क दिया जाता था, हफ्ते दर हफ्ते टेस्ट होता था। सिमिलरली ऑनलाइन में भी ऐसे चलेगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। लेक्चर ऑनलाइन दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, डाउट पूछेगा बच्चा, हफ्ते दर हफ्ते टेस्ट होगा एंड फिर एनालिसिस मिलेगा। इसमें आपको स्कोर बोर्ड में ग्राफिकली एनालिसिस मिल जाएगा कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। जैसे बच्चे का एकदम से बढ़ा फिर दोबारा घटने लग गया है, तो इस तरीके से ग्राफिकली दिख जाता है। फिर एक बुक मार्क होता है, जो बच्चे को क्वेश्चन हार्ड लगता है उसको बच्चा सेव करके रख सकता है। Sorry, I just wanted to share something. Sorry to interrupt you. तो मिस्टर अभिषेक ने वो जो ग्राफ दिखाया, एक पॉइंट तो उसका ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे हम जो बच्चा है वो कर रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम जो बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का स्कूल का बहुत पार्टनरशिप की जरूरत है। आप ये भी देखिए कि घर की सिनेरियो उस टाइम में ऐसा तो नहीं हुआ है कि उसको थोड़ा टाइम अच्छे से नहीं मिला, उसको थोड़ा माहौल नहीं मिला, या वो और किसी चीज में बिजी हो गया जिस वजह से डिप हो रहा है। सो डिप हमेशा सिर्फ वो उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है या क्लास में नहीं समझ पाया, वो वाला एंगल भी हो सकता है। लेकिन ये एंगल भी हो सकता है कि वो घर में बिजी रह गया, वो उसने पढ़ नहीं पाया उस हफ्ते फॉर सम रीजन। तो इस वजह से तो ये एनालिसिस को दोनों तरीके से ट्रैक करना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी। एंड ये तो सारे फीचर्स हो गए। मोरओवर जो ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ये बिल्कुल हमारे इंडिया में जिस हिसाब से इंटरनेट चलता है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो चाहे आपके पास 2G इंटरनेट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके पास थोड़ा कम रेंज का फोन भी है तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। किसी तरीके का भी फोन है, कैसा भी इंटरनेट है, अपना प्रोडक्ट चलेगा। बच्चा इसमें लेक्चर भी देख पाएगा और टेस्ट भी दे पाएगा, सारे काम कर पाएगा बच्चा इसमें। जी हाँ, that's very good. I think it's a good, और this is from a student perspective से ये है। और जो टीचर्स का तो वो तो अलग ही है, अपन अलग से वो तो अलग अपन कर लेंगे, वो तो अलग कर लेंगे। that is good. और इनका एक और भी चीज है कि ERP सिस्टम भी है, वो अपने आप में वो भी अलग है। ऑलरेडी जयपुर इज एक्सपोज टू इट, जो पेरेंट्स ऐप वगैरह उस पे था, टीचर्स ऐप एंड स्टफ।
So I think Yeah. हाँ जी, for हाँ जी. this meeting it is good. We have another 6-7 minutes. इससे session complete हो जाएगा. हाँ. Yeah. So But- Yeah, I'll Mr. Yeah. I'll stop the screen sharing then. Yeah, जी, Mr. Venkat, I think now we should start taking the questions Yeah. and just try to debug any doubts. And I'm sure we will go ahead and take up and you will make some points. But I had just promised Mr. Raman to answer on something, and please add in if you have anything. So Mr. Raman, आपका ये question था कि and बहुत सारे लोगों का question था कि वैदिक मेथड ऑनलाइन कैसे इंटीग्रेट हो सकता है. Actually वो थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगता है सुनने में. एंड फिर आपने बोला ये तो बहुत सारी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है. So I'm not surprised